Let's start our class, beta. Join your hands and close your eyes. Saira. Sairam ma'am. Sairam ma'am. Okay, let's start our class. Sairam ma'am. Okay. अच्छा अनुभा, कल आप आज लेफ्ट नहीं होना बेटा। एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है, मैं लास्ट में पूछूंगी आपसे। कल माइक आपका काम नहीं कर रहा था, ठीक है। अर्चित, कम ऑन बेटा। अर्चित, Yes ma'am. हाँ, कम ऑन, शो मी योर प्रेजेंटेशन। Okay ma'am. मैम और बहुत सारे प्रेजेंटेशन बच गए क्या? है फिर भी 8-10 बच्चे तो हैं। यस मैम। Ma'am, can you see my presentation? बेटा बहुत छोटा है, थोड़ा सा उसको उसमें करो, फुल स्क्रीन पे करो। मैम उसको अपने मोबाइल पर टिल्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ओके ओके ओके, मोबाइल पे, ओके, नो प्रॉब्लम। बोलो, आप करो, प्रेजेंट करो आप, देखते हैं कितना हो पाता है। यस, दिख रही है आपकी स्क्रीन, तो दिख रही है। Okay ma'am. Shri Satyavai Vidyavihar. Subject Social Science. Topic Maps. Presented by Ajit. Maps. A map is a representation or drawing of the Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. When many maps are put together, we get an atlas. Maps are of different types. A. Physical map. B. Political maps. C. Thematic maps. Types of maps. Physical maps. Maps showing natural features of Earth, such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc., are called physical or maps. Political maps. Maps showing cities, towns, and villages in different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. Thematic maps. Some maps that focus on specify information, such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forests, instructions, etc., are known as thematic maps. Three components of maps: distance, direction, symbol. Distance scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. Scale is very important on any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. In a large areas like continents or countries are to be shown on paper. Then we use a small scale. It is called a small scale map. When a small area like your village or town is to be
shown on paper. Then we use a large scale that is 5 centimeter. It is called a large scale map. Direction. There are four major directions: north, south, east, and west. They are called cardinal point. Other four intermediate directions are north, east, any, south, east, southwest, and northwest. We can find out the direction of a place with the help of a compass. Compass. It is an instrument used to find out the main direction. Its presenting needle always point towards north-south direction. Symbol. It is the third. It is the third important component of a map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, etc. So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures, and lines. These symbols give a lot of information in a limited space. Maps have a universal language that can be understood by all. There is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols. Various colors are used for the same purpose. For example, generally blue is used for showing water, brown for mountain, yellow for plateau, and green is used for plains. Thank you. Okay, thank you, beta. Now, open, Ma'am, can I? open your camera. Ma'am, doubt. Just wait. Vedansh, what is your doubt? Ma'am, तन्मय. Okay, तन्मय. मैम मुझे अर्चित से कुछ पूछना है. Okay, Archit, are you listening him? Archit? Yes, तन्मय. अर्चित से इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्यों दी गई है? What is the use of intermediate direction? अर्चित, आंसर करो बेटा. आपको जो समझा वो बोल दो. अर्चित, अर्चित अनम्यूट करो पहले तो, कैमरा में आओ. ओपन करो अपना कैमरा भी और माइक भी बेटा. अर्चित, माइक भी म्यूट अनम्यूट करो और कैमरा भी ऑन करो बेटा, है ना. कैमरा भी ऑन करो थोड़ा सा. अर्चित, मैम उसका माइक ऑन है. आपने सुना बेटा तन्मय का सवाल सुना, क्वेश्चन सुना उसका. अर्चित, Yes, ma'am. तन्मय ने जो क्वेश्चन किया आपको समझ में आया? उसने क्या पूछा? No, ma'am. नहीं पूछा, नहीं समझ में आया कि सुना नहीं? मतलब अच्छे से मतलब सुनाई नहीं. तन्मय रिपीट करो बेटा. Yes, ma'am. What is the use of intermediate directions?
अर्चित क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, उसके नंबर हैं, 10 नंबर है क्वेश्चन के आंसर्स देने के, 10 मार्क्स। जो मैम आपको ये क्वेश्चन है बीच में जो आप प्रेजेंटेशन की बात क्वेश्चन पूछ रहे हो। These questions are based on epistemic learning, आपकी समझ पे बेस्ड है बेटा, है ना, ये ओरल टेस्ट नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। मैंने आपको बताया था 3 पैरामीटर्स है, प्रेजेंटेशन, कंटेंट और एपिस्टेमिक लर्निंग। ओके, जो क्वेश्चन पूछा जाए। अर्चित नहीं आ रहा है तो मना करो बेटा, नहीं आ रहा, ओके। पहले आप कैमरा ऑन करो एक बार, कैमरा ऑन है? मैम उसका कैमरा ऑन है। मुझे दिख क्यों नहीं रहे आप लोग? मैम आप अपना मैम उसकी मैम वीडियो को पिन करके देखेंगी तो दिखने लगेगा। नहीं, कोई भी नहीं दिख रहा ना, तो मैम आप चेंज लेआउट में 49 टाइप्स वाला कर लीजिए, हम सब दिखेंगे। नीचे से मैम जो नीचे जो है मैम 3 डॉट्स है, तो उसमें जाके चेंज लेआउट का ऑप्शन आएगा, तो अभी उसमें 16 होगा, तो 16 से 49 पे कर दो। मैम उसमें सबसे चेंज लेआउट में, यस मैम, फिर नीचे प्राइवेसी होगी। हाँ पूरे लोग दिख जाएंगे। 49 कर लीजिए पूरा। यस मैम। ओके ओके, हाँ 49 कर लिया मैंने। मैम अब पूरे बच्चे देखेंगे। मैं बहुत बच्चे फोन ही नहीं उठा रहे। कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं, आज जो लास्ट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं उठा रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के बाद टेस्ट लेना नहीं है, तो इसका टाइम अप हो गया। अब आपको अर्चित दिख रहा है? उससे तो आप वीडियो ऑफ ही कर लो। अब दिख रहा है? यस मैम। अब अर्चित दिख रहा है, ठीक है। अर्चित, अर्चित मेरा सवाल बोलो, ठीक है। आपने स्केल के बारे में बताया, ऑल दी कंपोनेंट्स यू डिस्कस्ड अबाउट ऑल दी कंपोनेंट्स, की 3 कंपोनेंट्स क्या थे हमारा, स्केल, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। ओके, मेरा सवाल आपसे ये है कि लार्ज स्केल मैप किस लिए यूजफुल होता है? लार्ज स्केल मैप, व्हाट इज द यूज ऑफ लार्ज स्केल मैप? सोच के बोलो, अभी आपने पढ़ाया इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, लार्ज स्केल मैप का यूज क्या है? चलो, किसी और को बोलना है इसका आंसर? लार्ज स्केल मैप? यस मैम, प्रवंशिका? Yes, ma'am. Large scale maps generally show more details than small scale maps because at a large scale there is more space on the map in which to show features. Large scale map typically used to show sites, plan, local area, neighborhood, town, etc. Okay, very good. मैम हाँ, yes. मैम मैं बताऊँ वेदांश? हाँ वेदांश। मैम वो लार्ज स्केल मैप हम छोटे एरियाज को दिखाने के लिए यूज होता है, बड़े स्केल पे जैसे 5 सेंटीमीटर पेपर, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पेपर पे और 500 मीटर वो रियल में होगा। वेरी गुड। कैन आई? हाँ मानव, यस।
Ma'am, a large scale map is one in which a given part of the earth is represented by a large area on the map. Large scale maps generally show more detail than small scale maps because at a larger scale there is more space on a map in which to show features. वेरी गुड, गुड। जो आंसर कर रहे हैं दैट मीन्स दे हैव अंडरस्टूड दिस वेरी मीन्स केयरफुली, दे हैव लिसन टू ऑल। ओके, गुड, अच्छे से समझा है और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, वेरी गुड। शैल वी प्रोसीड फर्दर? नेक्स्ट कमिंग टू अक्षा। अक्षा आज भी नहीं है। अक्षा तो ज्वाइन की थी, अक्षा कहाँ गई? नहीं, अक्षा नहीं है। चलो आगे बढ़ती हूँ मैं। दिव्यांश आया है क्या? दिव्यांश, दिव्यांश बेटा आप तैयार हो? दिव्यांश अनम्यूट करो। दिव्यांश, मैम वो है क्लास में। हाँ क्लास में दिख रहा है, मैंने खोला हुआ है वो। दिव्यांश, मैम है दिव्यांश। दिव्यांश अनम्यूट करो बेटा। तो से ज्वाइन हो गया शायद, वो है ना प्रेजेंटेशन के लिए हो रहा होगा। मे भी देखते हैं। मैम, हाँ जानवी। मैम अब मेरा माइक सही हो गया, मैं प्रेजेंट करूं? ओके, अभी दिव्यांश का मैं आंसर देख लूं। दिव्यांश शायद कर रहा है, फिर आप करना। दिव्यांश, यस मैम। तैयार हो आप? मैम अब तो नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? मैम आज प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगी। क्यों? मैम अभी मेरी आधी अधूरी है। आधी अधूरी क्यों है? जब आज लास्ट डे है तो आपको मार्क्स नहीं चाहिए, ये बताओ आप मुझे। चाहिए। फिर लास्ट 3 डेज से हम यही तो कर रहे हैं बराबर। मैं भी एक्स्ट्रा क्लास क्यों ले रही हूँ बेटा? 30 नवंबर तक सारे असेसमेंट कंप्लीट करने हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन 30 नवंबर तक ही कंप्लीट करना है। इसकी डेट शीट नहीं है अभी आपका पूरा। नहीं, मंडे को कैसे कर सकते हैं? मेरी भी तो अपनी क्लासेस होती है ना बेटा, फ्री थोड़ी ना रहता टीचर। आपकी मर्जी है। मैंने तो आपको कल ही बोला था, सभी बच्चों को बताया था कि कल के बाद मैं सैटरडे के बाद नहीं लूंगी। ठीक है, आप नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हेमंत इज देयर? नो, एब्सेंट। हेमलता मैम एब्सेंट। नहीं है। ओके जानवी, कम ऑन बेटा। यस मैम। मैम कैन यू सी माय स्क्रीन? या विजिबल। मैम वीडियो की आवाज नहीं आ रही। JC, are you okay? Yeah, mom. No worries. I'm a strong boy, mom. You seem to love your plants as much as you love your kids. Yeah, Mom, but so. Children, they too are living creatures. Plants were taken care of since ancient times. Since ancient times? Yes, Ancient times? Ah, some 100 years ago? no, this is Stone Age. Stone Age man that plants from animals and birds. Thus people came to be known as farmers. Oh, so mom, are you also a farmer? To of plants? Mom, tell us. Are you? I need to get out of bed. I shall answer all your queries at the dinner table. Mom, please. JC, please be a good boy. I shall answer all your queries. No trouble, dear. I'm going to cut all on by myself with the encyclopedia. And you, my friend. Hey, Professor. So are you also? No kid, I belong to Goddess group.
Since I took care of the cattle, I became a herder. Okay, I get it now. People who took care of plants were farmers, and those who took care of animals were herders. Bang on, kid. Farmers protected plants so seeds could ripen and they could grow food. Herders are those who tamed animals by leaving food for them near their shelters. This process is called domestication. So only cattle were domesticated. Now, the first animal to be tamed was a wild ancestor of the dog. Was it a pug? The Vodafone dog? Nope, dude. It was called Dingo Morgel. It looked more like a wolf. So you had cattle and dogs as your pets. Yeah. Herders tamed animals that were less harmful in nature, like sheep, goats, pigs, cattle, and dogs, to protect the cattle from wild animals. Basically, all those animals which gave us milk and meat. Aha, I get it. So tell me, Kavister, what kind of plants did you grow? Well, we grew plants that will give us food, like wheat, lentils, and rice. Oh, okay. Kavister, we have plants in our garden. But how did you tame plants? Did you also have a home like us? Yeah, kid. Without a fixed home, how could we grow food? Like your mom takes care of the plants in the garden. We had to settle down in one place to water and weed plants. And you know what, JC? We started the process of domestication some 12,000 years ago. And where is this house in India? Archaeologists found traces of bones near my house, which is in the present-day Kashmir. Many of my fellow mates settled in East India and quite a few in South India. How did archaeologists find out that man lived in all these places? Well, archaeologists found remains of burnt grain like wheat, barley, rice, and lentils, and bone remains of animals like sheep, goats, and cattle. Oh, I must say archaeologists are smart people. I think I should have become one too. JC, son, I need you to help me set the dinner table. Hey, car, still gotta go. Mom's calling. Anyway, thanks for fun, friend. My pleasure. Ma'am, now I will share my screen. Okay, fine, better. Carry on. मैम Yes, मैम Dava. मैम चैट बॉक्स में लिखा रहा है कि चैट इजंट अवेलेबल एट दिस टाइम। चैट का यूज नहीं है अभी, अपन प्रेजेंटेशन देखते बेटे, है ना? यस मैम। Yes, ma'am, can you see my screen? Yes. Om Shri Sai Ram. My name is Jandi, and my topic is the beginning of farming and herding. How hunter-gatherers started farming. When people do not know about farming, several grains bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of subcontinent. And women and children collected them as food. They learned where they grew and when it ripened. This is how they learned farming. So this means people do not know about farming. The crops like wheat, barley, and rice grown by their own, and they knew where they grow and when it ripened. This is how they learned farming. How people know about herding. People also tame animals by leaving food near their shelters. The first animal to be tamed was the wild insect or dog. The animals come near to their shelters. Animals such as sheep, goat, cattle, and pig, most of them ate grass. People also protected animals from wild animals. This is how they became herders. So this means people leave food for animals near their homes. Dog was the first animal to be tamed.
animals such as pig, cattle, goat, sheep come near their shelters, people also protected them from wild animals. This is how they became herders. Thank you. Ma'am, your mic is mute. Yes, ma'am. Yes. Saira, now am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am, you Janvi. are audible. Yes. Janvi, now tell me, why did people start herding animals? Why did they start herding animals? What is the use of animals for them? They can eat them and use them as a food. They can protect them from wild animals from them using them. Any other reason? Ma'am, can I? Just wait, Vikram. Just wait. I have to give marks to her. No? That is why. Any other reason, Janvi, beta? They could eat them. The animal protected them. What else? Is there any other point you are missing? Ma'am, can I? Ma'am, can I? Wait a little. Can I tell in Hindi? हाँ, no problem. Speak. मैम अगर जैसे उनकी कोई क्रॉप खराब करने के लिए आए तो उन्हें उनकी क्रॉप प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी क्रॉप को एनिमल्स प्रोटेक्ट करते थे. You mean to say that? Yes, ma'am. Okay. Okay, fine. Good. Yes. Ma'am. Cherry? Ma'am, can I? Just wait, Vedansh. Cherry? मैम जब जैसे उनके घर में चोरी हुई तो मैम डॉग बहुत फेथफुल होते थे मैम, और वो मैम साइन दे देते थे कि आपके घर में कोई आ रहा है. ओके, वेरी गुड. यस चोरियां होती थी क्या? मैम एक और पॉइंट है. हाँ, वेदांश. मैम जो डॉग्स होते थे मैम, वो उनकी जो कैटल और जो शीप वगैरह थी, अगर वो अपने हर्ड से इधर उधर जाने लगती थी तो वो उन्हें अब भौंक के उनके ऊपर वो उन्हें एक साथ ले आते थे और फेंस में डाल देते थे. मैम ये वाला वीडियो में भी था ये वाला पॉइंट. यस, गुड. मैम जब उनके पास कुछ खाने को नहीं था मैम यही सेम पॉइंट था जो जब वेदांश ने. ओके, गुड गुड. तन्मय. मैम ओके, धवल क्या बोल रहे हो आप कि चोरियां? मैम तब यस मैम पहले के समय में चोरियां होती थी क्या? अब आप बताओ, मुझे क्या लगता है आपको चोरियां होती है? तो मैम नहीं होती उधर खुला खुला रहता है. जैसे जैसे इंसानों ने अपने सामान बटोरना शुरू किया, वो सामान उनकी प्रॉपर्टी क्या थे? सबसे पहले एनिमल्स उनकी प्रॉपर्टी थे. दे ट्रीट एनिमल्स एज देयर प्रॉपर्टी. तो आप इमेजिन करो कि बिकॉज वी पीपल आर ह्यूमन बीइंग्स, इट इज आवर टेंडेंसी. हमारे अंदर ये टेंडेंसी होती है हमारे दिमाग में, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स कैसे वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, है ना. आप खुद सोच के देखो कि मैंने जो पढ़ाया नहीं भी होगा वो भी आप सोच सकते हो. मम्मा पापा ने जो नहीं भी कहा वो भी आपके दिमाग में आ जाता है. ऐसा तो नहीं है कि आप रुक जाते हो, नहीं मेरी मम्मा ने ये नहीं बताया, पापा ने ये नहीं बताया, टीचर ने ऐसा नहीं कहा, है ना. हमारे दिमाग में आते हैं. तो आरव ने भी हैंड रेज किया है. हाँ मैम कोई कुछ चीजें मैम पता चल जाती हैं, खुद पता चल जाती हैं. क्यों चल जाती है? बिकॉज यू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स. आप उसके प्रति जागरूक हो, इसीलिए आप सारी चीजों को देखकर, सुनकर, एक्सपीरियंस करके सीखते हो. तो ये जो किसी चीज को लेना जो था, ये भी मनुष्य का इंस्टिंक्ट है, इनबॉर्न इंस्टिंक्ट है.
आपको कई बार लगता है, लेकिन फिर आपको जो पढ़ाया गया है, जो संस्कार मिले ना, उससे आप अपने आप को स्टॉप कर लेते हो। बट दैट टाइम इट वाज नॉट लाइक दैट। कोई संस्कार नहीं थे, किसी को कुछ नहीं पता था। तो हो सकता है मे बी, जैसे धवल बोल रहे क्या चोरियां होती होंगी, तो मे बी एनिमल्स को वो चुरा सकते थे, फ्रूट्स वगैरह जो वो डॉग होता है तो भोगता है, तो एनिमल्स वो चोर भाग जाता है। हाँ, हो सकता था, वो भी सारी चीजें हो सकती थी, बट एनिमल्स के ऊपर ओवर पावर करना भी मनुष्य को आता था। मनुष्य को ओवर पावर करना भी आता था, है ना। वो डॉग को मार भी सकते थे, डॉग को मार भी सकते थे। मैम वो लालची भी थे, लालची। उस टाइम उनको भी लालच आ जाता था मैम। बिल्कुल आ सकता था। मे बी मनी तब नहीं था और कुछ नहीं था, बट जो कुछ भी था, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को सर्वाइवल के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती थी। अगर उन्होंने देखा कि हमारे उस व्यक्ति के पास बहुत सारी चीजें हैं, तो दे माइट हैव टेकन दैट आल्सो, तो वो उन्होंने चुराया भी हो सकता है। ठीक है। जैसे मैं एक पॉइंट दूं। हाँ बोलो मैम, जैसे उन्होंने कहीं पे किसी भी विलेज में ज्यादा खाना पीना देखते हैं, तो उनके मन में लालच आ जाता है कि यहाँ पे तो इतना सारा खाना है, हम जाके ले लेते हैं रात में। एग्जैक्टली, है ना। आप देखते हो कि मार्केट प्लेसेस पे आप जितने भी गरीब होते हैं, बेगर्स होते हैं, यू विल फाइंड दैट द स्मॉल चिल्ड्रन दे यूज्ड टू टेक समथिंग फ्रॉम दैट सम ऑफ द ठेलास, और उठा लेते हैं। वो क्यों उठा लेते हैं? क्योंकि उनको नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि मेरा पेट खाली है, मुझे भूख लगी है। दैट इज देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट, जो उसको ये करने के लिए मजबूर करता है कि जाओ, वहां पे भोजन रखा है, वहां खाना रखा है, वहां फ्रूट्स रखे हैं या वहां सामान रखा है, उठा लो उसको। इसीलिए कोई चोरी करता है, इसीलिए कोई कुछ भी उठाता है। ठीक है, अगर ये सब नहीं होती तो नहीं होता। हाँ करना है मैम, पर चोरी करने का भी जो तरीका होता है केयरफुली करना होता है, इसलिए हर बात उनको पता ही चल जाती थी क्या? हाँ, ये आपको पता है ना, ये आपको पता है, वो आज पता है। क्यों पता है? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने बताया, आपके बड़ों ने ऐसा बताया है, इसलिए पता है। मैं बोले तो अगर उन्हें भूख लगती है, वो चोरी करने जाते हैं, वो तो बिना सोचे समझे वो तो कर देते हैं। हाँ, नहीं कर देते। उनको नहीं पता कि कोई पनिशमेंट है, कुछ कोई कहे पड़ता है। बस उतना सही है कि उन्होंने सोचा, किसी ने उनको भगाने की कोशिश की, तो नेक्स्ट टाइम वो छुप कर जाएंगे, ट्रिकी वे में जाएंगे, ट्रिक्स लगाएंगे, प्लान करेंगे। तो ये तो हमारी फर्दर आगे जो भी कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, चलो, वेरी गुड। यस मैम। नेक्स्ट कमिंग टू ध्रुव, मैं आपके पास आऊंगी, आज क्लास लीव नहीं करना बेटा आप, ठीक है। महिमा इज देयर? नो मैम। नो, ओके, एब्सेंट मार्क कर दिया मैंने महिमा को। महक, महक, महक तो है। हाँ महक, आर यू रेडी बेटा? कम ऑन। यस मैम। तैयार हो बेटा? आर यू प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन? यस मैम, कर रही हूँ। ओके ओके। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। महक प्रेजेंट कर दी है क्या? यस मैम। मैं मैम आरओ का भी आज ही होगा क्या? सभी का आज होना है बेटा। आई मे टेक 10-15 minutes more, but I'll take. यस मैम। आपका तो और कोई क्लास तो नहीं है ना आज? इसके बाद नो मैम, बस लास्ट दो ही लगती हैं। टॉलरेट कर सकते हैं बेटा, ओके। 10-15 minutes we can bear. यस मैम। मैम आप 30 तक ले लीजिएगा। हाँ 30 तक I'll take, 30 तक। जिसमें हो जाए वो लेफ्ट भी कर सकता है फिर। हाँ हाँ, आप लेफ्ट कर सकते हो, 110 के बाद लेफ्ट कर सकते हो, ओके बेटा। यस मैम। You can leave the meeting.
हरी अप महक, नहीं तो आप तैयार नहीं हो तो मैं आगे बढ़ू। प्रांजल इज देयर? प्रांजल? No, ma'am. नो मैम। पुलकित? मैम महक इज प्रेजेंट। महक is presenting. Okay, fine. Elements of democratic government. Okay. Yes, ma'am. Okay, fine, beta. Come on. What are the various ways in which people participate in process of governments? There are multiple ways. By voting in election, by taking out at rallies and protests if they are unhappy, by participating in signature campaigns, by participating discussions on television and other modes of platforms. This is okay. Much? Mehak, this much only? Yes. Different ways. Okay. What are the different ways to participate in the government? Okay. Now, you said in your point in the slide you have written that if people are unhappy, they used to take out rallies and Ma'am, can I? just wait, beta. Rallies and what? Protest. They used to do protest. Okay. So how do they show their anger, or you can say disappointment to the government, and when? कब दिखाते हैं वो अपना एंगर, और कब वो ये अपना डिसअपॉइंटमेंट? when the voting on. During the time of election or voting. Okay. What else? Any other thing? मैम मैं बताऊं? Mehak, any other answer? No, ma'am. Okay. Yes, Vedansh, bolo. Vedansh? यस मैम, वो लीव वेटिंग। वो क्या नहीं करते? क्या करते हैं मैम? वो कोई गलत बात बोल रहे हैं और दूसरे मैम वो कह रहे हैं कि वो बात गलत है, तो मैम वो खुद को अपनी बात में सही दिखाने के लिए भी गुस्सा होता है। ओके, एनी अदर आंसर? मैम क्वेश्चन क्या था, एक बार बोल सकती? मेरे पास दिव्यांश का फोन आया तो कह रहा था कि मतलब उसका रेडी है प्रेजेंटेशन। अच्छा ठीक है, तो दिव्यांश तो ज्वाइन होगा, तब तो हो गया ज्वाइन। ठीक है, यस मैम हो गया मुझे। ओके ओके ओके। क्वेश्चन ये था
कि जो लोग हैं, महक ने अपने स्लाइड में दिखाया कि देर आर वेरियस वेज टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट. Yesterday we discussed in the Pravanshika's PPT that how government used to work and what are the methods. Okay, and हमने ये भी डिस्कस किया कि गवर्नमेंट के हम सभी पार्ट हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, वही उन्हीं की सरकार होती है. जनता ही एक्चुअली रूल करती है. ठीक है. तो यहाँ पे इसने बताया कि हम किस प्रकार से पार्टिसिपेशन करते हैं. उसने जो बताया था कि हम करते हैं, और इसने बताया कि वो कौन से तरीके हैं जिससे हम गवर्नमेंट में समझ पाते हैं कि हम ही गवर्नमेंट है. ठीक है, उसने वेज बता दिए. नाउ माय क्वेश्चन वाज दिस कि गवर्नमेंट के लिए जो एंगर है, उसने बोला कि पीपल टेक आउट रैलीज एंड दे यूज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट when they are unhappy. जब वो अनहैप्पी होते हैं, तो अनहैप्पी क्यों होते हैं, कब होते हैं और कैसे वो प्रोटेस्ट करते हैं? मैम मैं बताऊं? हाँ चेरी. मैम जब उन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया हो. किसने? मैम गवर्नमेंट ने गलत डिसीजन लिया. वेरी गुड. एनीबॉडी? उनकी बात नहीं मानी गई है. उनकी बात नहीं. इग्नोर हिम. मैम अगर उनकी बात पे है ना गलत इल्जाम लगाया जा रहा हो. किनकी बात? जैसे कि मैम गवर्नमेंट की, मतलब मैम ऐसे कह रहे हो कि ये गलत बोल रहा है ये. ठीक है. ओके. गवर्नमेंट क्योंकि एक व्यक्ति नहीं है. इट इज नॉट अ पर्सन. गवर्नमेंट इज नॉट अ पर्सन. हमने जैसा वो ग्रुप है और हम ही चुनते हैं. हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव बस भेजे हुए हैं. हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं, बट वो रिप्रेजेंटेटिव पूरी जनता की बातों को ख्याल में रखकर काम करते हैं. अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जनता आक्रोश में आ जाती है, जनता एंग्री हो जाती है और जनता उनके खिलाफ रैलीज निकालती है या प्रोटेस्ट करती है या धरना देती है, चक्का जाम करती है. कहीं कहीं आप बार बार सुनते हो कि इस चीज के लिए लोगों ने गाड़ियां रोक दी, ट्रेन रोक दी. ये सब क्या है? ये उनका एंगर या प्रोटेस्ट है. व्हेन गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द पीपल और इन फेवर ऑफ द पीपल, तो लोग इस तरीके की हरकत करते. ट्रेन के सामने खड़े हो जाते हैं, ट्रेन को आगे ही नहीं बढ़ने देते, बसों पे पत्थर बरसाते हैं, काली झंडियां दिखाते हैं, लीडर्स के पुतले फैलाते हैं. दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ unhappiness, showing their unhappiness that they are not at all happy with the working of the government. जो सरकार काम कर रही है, चाहे वो उनकी सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, पंचायत हो. ठीक है. अगर वो डिससेटिस्फाई होते हैं, अगर अनहैप्पी होते हैं, दे डू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. ना वो डंडे से कांच फोड़ देते हैं गाड़ियों को. हाँ, पनिशमेंट गवर्नमेंट को नहीं देते, पनिशमेंट आम जनता को ही देते, अपने पीपल को ही देते हैं. हाँ. मैंने न्यूज में सुना था कि जो वो करवा. हाँ, तो मैंने न्यूज ऑपोजिशन वाले ये करवाते हैं, कई बार पैसे दे देते हैं. कुछ एक गुंडे उन्होंने हायर किए होते हैं और उनको बोलते जाओ कर. दैट इज नॉट ट्रू. मैम रोड ब्लॉक कर देते हैं. सही तरीका कुछ और है. सही तरीका बिना अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए हुए काम करवाना. यस मैम, योर वॉइस इज बेटा हो सकता है नेटवर्क इशू. चलो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे आते हैं हम. मैम मैंने न्यूज में देखा था वो गरीबों को न्याय चाहिए था, अगर नहीं दे रही थी गवर्नमेंट तो वो पटरी पर सो गए थे. हाँ, वो अपनी जान भी गंवाते हैं, बहुत सारे जान गंवा भी देते हैं. यस मैम. यस मैम, कुछ लोग तो धमकी भी देते हैं. बात हो गई थी फिर मैम, मालगाड़ी चढ़ गई थी. हाँ यस. मैम इधर की एक घटना थी रावगढ़ की. मैम कोई आदमी इधर सामने खड़ा हो गया था ट्रेन के सामने. पुलकित रेडी? यस मैम. ओके. Ma'am, am I visible? Show your screen, beta. Share your screen first. You are visible. Share your screen now. Ma'am, can we left? Now yes ma'am, now we can.
Now your screen is visible. Om Shri Sai Ram. Presentation of on maps. My name is Pulkit Chokya and I study in class 6th. What is distance? Maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. Or we can say maps are drawn to reduce scales. But the reduction is done very carefully so that the distance between places is real. It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on ground. Three types of maps. Physical map. Maps showing natural features of the earth such as mountains, plains, rivers, oceans, etc. are called physical maps. Political maps. Maps showing cities, towns and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. Thematic map. Some maps focus on specific information such as road, rainfall, forest, industries, etc. Sketch and plan. Sketch. A sketch is drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. Plane. A plane is drawing of a small area on a large scale. A large scale map is a lot of information. Thank you, made by Pulkit Chokshi. Very good. Thank you, Pulkit. Any question from anybody? Would you like to ask question to Pulkit? Anyone? No, ma'am. Okay. मैम तन्मय, हाँ तन्मय, yes. मैम ये अभी इसने जो बताया स्केच वाला, वो स्केच वाला मुझे समझ नहीं आया. Okay, Pulkit, can you explain it again, beta, without sharing your screen? Yes, ma'am. मैम स्केच वाला. मैम स्केच जो होता है ड्राइंग मेनली बेस्ड मेमोरी एंड स्पॉट. स्केच पे हम मेमोरी के मुताबिक जो स्पॉट रहता है जमीन, ऑब्जर्विंग एंड नॉट टू स्केल, और वो स्केल से नहीं बना रहता. तन्मय, यस मैम. ठीक है. कोई भी स्केच क्या है, एक ऐसी ड्राइंग है जो आपकी मेमोरी के ऊपर बेस्ड है. लाइक मुझे अगर किसी ने पूछ लिया, हाँ अपने घर के बारे में बताओ, तो आई डोंट नो अबाउट दैट पर्टिकुलरली कि कितना बड़ा कोई चीज है, बट मैं आपको रफली एक ड्राइंग बना के बता सकती हूँ. ये मेरा घर है, इधर जाओगे तो इधर से डोर है, देन ये डोर के पास एक टीवी रखा हुआ है, उसके साइड में एक बेड रखा हुआ है. आई विल ड्रॉ अ रफ ड्राइंग ऑफ इट, नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल, विच इज नॉट एट ऑल अकॉर्डिंग टू स्केल. वो वॉल बड़ी भी हो सकती है, वो छोटी हो सकती है. हाँ एग्जाम्पल दूं मैं? हाँ एग्जाम्पल दो. मैम जैसे मैम हमने कोई न्यू फ्रेंड बनाया स्कूल में, और हमें उसके घर जाना और वो हमें उसका रास्ता नहीं पता, तो मैम वो ऐसे पेपर पे ऐसे ऐसे ड्राइंग बना देगा कि इस बिल्डिंग के साइड से इधर जाना है और इधर फिर छोड़ना. बस बस वही है, वो स्केच है. फिर वैसे कभी कभी होता है, मतलब क्लास में जैसा अपन को पूछा कि इस शॉप पे जाना है, किधर जाएगा, तो एक पेज पे बता देता है कि इधर जाएगा तो फिर इधर मुड़ जाएगा, फिर उधर ऐसे.
मार्केट जाना है, किसी शॉप के बारे में किसी को बताना है, किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बताना है, तो राइट मूव करना, ये करना, फिर एक पेड़ आएगा, फिर एक बिल्डिंग आएगी, ऐसा हम उसको बताते हैं। तो हम वर्बली ना बता के एक पेपर पे जब ड्रॉ करके बताते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केच। ओके, रफ ड्राइंग। Yes, ma'am. नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, ये पर्टिकुलरली स्केल के बेसिस पे नहीं है, क्योंकि हम रफ बना रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम जितना डिस्टेंस बता रहे हो 5000 किलोमीटर है या 10,000 किलोमीटर है या 1000 किलोमीटर है। वी हैव जस्ट ड्रॉन दैट पिक्चर। ओके, Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट इज Raju, Rudra, Sandeep. Shalu is also absent today. So Mitesh absent. विराट का तो कल हो गया था, विराट का हो गया था। यस, नेक्स्ट इधर आ जाते। आरव, आरव मैम लेफ्ट कर गया। मैम वो लीव कर गया। ध्रुव आ जाओ बेटा, आप आ जाओ। मैम जिन लोगों क्या हो गया मैम वो लीव कर सकते हैं। यू मे लीव बेटा, यू मे लीव, सॉरी, आप लीव कर सकते हो जिनका हो गया, बट मैं 1:30 से ज्यादा जाऊंगी भी नहीं, क्योंकि ध्रुव बाकी है, आरव बाकी है, और अनुभव से एक सवाल करना है बस। मैम प्रणव भी बाकी है अभी। प्रणव ने कर दिया ना प्रेजेंट? मैम स्क्रीन इज विजिबल। यस बेटा, इट इज विजिबल। करो, बोलो। Sarah. Maps. A map is a visible representation of us. Entire area or part of area. Entire area or part of area. Represented on the face structure. Typically represented of On on the the flat surface. The word of a map is to illustrate, certificate, detailed features and the detailed features of the particular area. Most frequently used to illustrate geography. There are many types of maps, like static 2D map, 3D map, dynamic, and even interactive. There are three types of maps: political map, physical map, or thematic map. Physical map showing natural features of the earth, such as mountains, plateaus, plains, rivers, ocean, or can are called physical map. This is
Physical map, political map, map showing cities, towns and villages and different countries and world with their boundaries are called political maps. This is a political map. Thematic map. Some maps focus on specific information such as roads, maps, rainfall maps, map showing distribution of forest and industries, etc. are known as thematic maps. Thank you. Okay, very good. Dhruv, now open your mic. हाँ, माइक ओपन करो. आई हैव टू आस्क वन क्वेश्चन. ठीक है, ध्यान से सोच कर बोलना. ठीक, आपने बोला कि जो मैप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें फिजिकल मैप जो होता है वो नेचुरल फीचर्स को शो करता है. नेचुरल फीचर्स मीन्स माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ओके, प्लेन्स एक्सेट्रा. अब मुझे ये बताओ कि इनको नेचुरल फीचर्स क्यों कहा जाता है? व्हाई आर दे नोन एज नेचुरल फीचर्स? मेरी आवाज आ रही है आपको? ध्रुव, मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Ma'am, repeat question. माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स को नेचुरल फीचर्स क्यों कहा जाता है? व्हाई आर दे नोन एज नेचुरल फीचर्स? उनको नेचुरल फीचर्स मैन मेड नहीं होते. मैन मेड नहीं होते. वेरी गुड. अच्छा, मैन मेड नहीं होते तो उनको कौन बनाता है? मैम वो नेचुरली रहते हैं. नेचुरल ही रहते हैं. ओके, वेरी गुड. अच्छा, ये मैप बनाने से हमको क्या फायदा होता है? मैप इजी टू अंडरस्टैंड. इजी टू अंडरस्टैंड. मैप से और क्या अंडरस्टैंडिंग होती है? मैप को देखकर हमें क्या पता चल सकता है? क्या क्या पता कर सकते हैं हम मैप से? हम एरिया पता लग जाता है. एरिया पता लग जाता है. वेरी गुड. ठीक है, गुड. अच्छा ध्रुव, है ना, डरने से काम नहीं होता, हिम्मत से काम होता है. ओके, वेरी गुड. अनुभव. हाँ, यस बेटा. मैम, पर इसे कोई बता रहा था, मैंने सुना. वो पढ़ रहा था बेटा, उसका ब्रदर था. ओके, मुझे पता है. ठीक, ओके. अनुभव, एक क्वेश्चन आपसे पूछना बेटा, क्योंकि बाकी कोई भी नहीं है, इसके बाद हम एंड अप करेंगे मीटिंग को. ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए. कल जो आपने बोला था, आपने बताया था फार्मर्स एंड हर्डर्स के बारे में. ओके अनुभव? यस मैम. हाँ, अब मुझे ये बताइए कि मनुष्य को फार्मिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी? मनुष्य को फार्मर बनने की जरूरत क्या थी? वो तो सब कुछ उसको जंगलों से मिल ही रहा था, सब कुछ वो कर पा रहा था, सब गैदर कर पा रहा था, हंटिंग कर लेता था. तो उसको फार्मिंग की ऐसी की जरूरत पड़ी थी कि फार्मर बनना था? फार्मर क्यों बनना? मैम, जिससे ना मैम जंगल तक जाना ना पड़े, वो सामने के सामने फार्मिंग करके फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स ले सके. ओके, वेरी गुड. तो इससे क्या सुविधा हो गई उनको? मैम इससे मैम वो उन्हें इतनी दूर जाके ये सब नहीं करना पड़ता था. और मैम उन्हें पास के पास ही सब कुछ मिल जाता था. और मैम और
और मैम उन्हें ये भी पता चल जाता था कि मैम जंगल्स में तो बहुत सारे फ्रूट्स मतलब एक कोई ऐसे ही सेम तो जो मैम कुछ फ्रूट्स जहरीले भी होते थे। इसकी वजह से ना मैम समझ नहीं पाते थे कि कौन से जहरीले हैं और कौन से नहीं है। Good, very good. Okay. So with this, we are going to end our session. Okay. Let us do Shanti part. Come on. Shanti, Shanti, Shanti. Sairam beta. Sairam ma'am. Thank you. Bye ma'am. Bye beta. Sairam ma'am. Sairam ma'am. आपने